جب کوئی حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو جاتی ہے اور اسے اپنے اقتدار کے خطرے میں نظر آتا ہے تو ڈوبتے کو تنکی کے سہارے کے مصداق وہ ایسے ایشوز اٹھاتی ہے جس سے عوام کی توجہ ان مسائل کی طرف سے، ان برننگ ایشوز کی طرف سے منعطف ہو جائے، منتقل ہو جائے، دوسری طرف چلا جائے۔ تو آج جو اس وقت جو یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ بھی اسی جو ہے پالیسی کا حصہ ہے، یعنی حکومت کی جو ناکامی ہے ہر محاذ پر 9 سال ہو چکے ہیں اس ملک میں، مہنگائی، بے روزگاری اور بھی دیگر جو چیزیں دو کی عوام سے متعلق مسائل ہیں وہ اب سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ اس نے عوام کا جینا دو بحال کر دیا، جینا جو ہے محال کر دیا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اور وزیر اعظم صاحب ہے وہ ان مسائل پر تو کبھی بولتے نہیں ہیں، زبان نہیں کھولتے ہیں، لیکن ایسے مسائل کو جو ہے چھیڑتے ہیں جن کا جو ہے اس وقت عوام سے کوئی راست تعلق نہیں ہے، یعنی اسے سیاسی شعبہ بازی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے اس وقت یونیفارم سول کوڈ کی بحث شروع ہو چکی ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے 2024 کے الیکشن کا ایک سیاسی پینترا ہے، سیاسی جو ہے نعرہ ہے۔ اس کے بنیاد پر جو ہے جو پولرائزیشن کی جو پولیٹکس ہے، یہاں پہ جو پولرائزیشن پولیٹکس ہے اس کو جو ہے تو بڑھاوا دینا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ اس ڈیبیٹ میں ہم کو مجبوراً اس وجہ سے شامل ہونا پڑ رہا ہے کہ اس بارے میں ایک صحیح موقف آ جائے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور اسلامی اسکالر، محقق، رائٹر جناب ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، اور انہوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور پورے دلائل کے ساتھ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ جو ہے اس ملک میں کبھی بھی جو ہے قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا روئے زمین پر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بھانت بھانت کے مذاہب ہے، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی تہذیبیں ہیں، ہر 10 میل پر جو ہے زبان بدل جاتی ہے۔ تو ایسے ملک میں جو ہے ایک یکسانیت لانے کی جو کوشش ہے ایک گروہ کی طرف، ایک نظریاتی گروہ کی طرف سے، جو تعداد میں تو بہت ہی کمزور ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ وسائل کے لحاظ سے بہت طاقتور اور بہت ہی مضبوط ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب سے۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ یہ جو بحث چل پڑی ہے UCC پر، درباری میڈیا کو تو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس پر روزانہ بحث چلائیے، مجبوراً ہمیں اس پر بھی بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ایک صحیح موقف، صحیح تصویر جو ہے سامنے آ جائے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو ہے شوشہ کیوں چھوڑا گیا ہے؟ وہ تو سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا سیاسی محرک ہے، لیکن اس کے کیا جو ہے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ یونیفارم سول کوڈ کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ کسی بھی وقت پر اگر یہ شوشہ چھوڑا جائے گا تو اس کے رزلٹس کافی خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جب یہ الیکشن ایئر میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کا تصور بھی اس وقت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، چونکہ اگلے 5-6 مہینے انتہائی، اور اب چونکہ سب سے پہلے لا کمیشن نے جب یہ کہا اور انہوں نے موقف لوگوں کا جاننا چاہا، لوگوں کی رائے جاننی چاہیے، تو یہ بھی خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لا کمیشن کی طرف سے اپنا انیشیٹو ہو، لیکن اب تو چونکہ پرائم منسٹر نے خود نے بول دیا ہے اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں پورا بل لانے کی تیاری ہے، تو اب تو اس لیے کلیئر ہے کہ یہ باقاعدہ حکومت اور حکومت میں جو پارٹی ہے اور ان کا پورا جو گروپ ہے اس کی طرف سے یہ اشارہ سگنل مل گیا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے اس چیز کو اٹھانا ہے۔ اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حالانکہ دیکھیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں پر 95 سے لے کر 97% تک جو میرا اندازہ ہے کہ جو عوام ہے وہ ایسی ہے کہ جو کسی نہ کسی مذہب پہ حد درجہ یقین رکھتی ہے، یعنی ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دہریے ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کی تعداد اب بہت کم ہے اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک خاندانی نظام کا ان کے پاس ایک تصور ہے، سب مذاہب کی کہ جو کلچرلی جو ان کی پورا ایک سسٹم چلا رہا ہے، شادی بیاہ اور مختلف، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک ایسا ماحول تیار کر دیا جاتا ہے جس میں ایک وہ عوام جو ان کے اس سوچ سے کہیں
वक्ती तौर पर मैं मानता हूँ कि पूरे मजमूई तौर पर हिंदुस्तान का अवाम सेक्युलर है, लेकिन वो ऐसा माहौल एक वक्त में खड़ा कर देते हैं कि जैसे मुसलमान आपके लिए बहुत ख़तरा हैं, ये अगर इनको नहीं दबाया गया, अगर इनके इश्यूज़ के ऊपर इनको वो नहीं किया गया तो ये बढ़ते चले जाएंगे, इनका असर, इनका दबदबा हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा और ये फिर बाकी गैर जो मुस्लिम हैं ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के लिए जीना हराम कर देंगे। तो इस तरीके का एक उन्होंने एक माहौल तैयार करते हैं और यही कोशिश अगले 6-7 महीने के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से की जाएगी। लेकिन इस पर मेरा कहना यह है कि हम जब यकसा सिविल कोड पर बहस करें तो वो पॉलिटिकल इशू तो एक अलग जगह है, उसके ऊपर तो अपनी जगह जो लोग उस पर गुफ्तगू करें वो करें, लेकिन साथ में तो मेरा वही सवाल यही था कि ये जो है हमारे पास जज्बाती अंदाज में बहस करते हैं। अभी एक मिली तंजीम है उसके तरफ से जो है तो सवालनामा भेजा गया। अब सवालनामे में मैंने देखा कि वो जो है मिस्टर अवस्थी लिखा हुआ था, वो जस्टिस जो है, यानी ये तक नहीं मालूम बेसिक जो है कि आपको किस तरह से किसी को एड्रेस करना है, चेयरमैन को, लॉ कमीशन को, तो हम किस तरह से एम्पेरिकल अंदाज में जो है अपनी बात को पेश कर सकते, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा उस पर मजमून लिखा है। मेरी किताब भी मेरा उस पर लाने का इरादा है। वो तो एक मजमून चूँकि एक लॉ कमीशन की तरफ से ये था कि 3000 वर्ड्स के अंदर भेजें उनको शुरू में, तो एक उसका भेजा है हमने एक मुख्तसर करके और उसकी एक लंबा पूरा प्रपोजल भी हम उनको भेज रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए यकसा सिविल कोड में जो मेरा मानना यह है कि इसकी हिमायत में 3 तरह के लोग हैं। एक तो वही हिंदुत्व की फोर्सेस जो सरकार में, हुकूमत में हैं, लेकिन उसके अलावा जो मॉडर्निटी की, जो सो कॉल्ड जदीदियत की जो क़ुव्वतें हैं, उनकी भी कहीं दिलचस्पी रहती है कि कोई भी चीज़ जो मज़हब से जुड़ी है, जो एक ख़ास अंदाज का जो उनका तसव्वुर है सोसाइटी का, जो उससे दूर है या उनके रास्ते में रुकावट है, तो वो उसके सिलसिले में उनकी कोशिशें जारी रहती हैं। चूँकि वो जो पूरा जिसे हम मॉडर्निज्म कहते हैं, मॉडर्निटी कहते हैं, ये एक किस्म का तसव्वुर, इसकी पूरी बुनियाद कॉरपोरेट वर्ल्ड और बिज़नेस वर्ल्ड है। उनके मकासद खालिस बिज़नेस के हैं, उन्हें बाकी और कुछ नहीं लेना देना होता है। उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि फैमिली सिस्टम टोटली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बच्चों के हालात क्या हो रहे हैं, जो औरतों के हालात, जिस औरतों की आज़ादी जिसे कह रहे हैं, वो असल में औरतों की आज़ादी नहीं बल्कि औरतों को उसमें इंतहाई मजबूर और उनके ऊपर बर्डन बढ़ाया जा रहा है। आज़ादी असल में मर्दों की है, वो कहा जा रहा है औरतों की आज़ादी। अरे जब औरत अगर बरहना होती है तो खुश कौन होता है? मर्द होता है। अगर औरत अपनी सेक्सुअल सर्विसेज सप्लाई करती है मार्केट में तो मर्द फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि औरत की आज़ादी, असल में आज़ादी मर्दों की आज़ादी है। औरतें बेचारी मजबूर हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अगर मैं पूरी दुनिया की मिसाल देने लगूँ आपको, चूँकि वो जो मॉडर्निज्म की ताकत है, कॉरपोरेट वर्ल्ड, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड है। जो अमेरिका, यूरोप के हालात हैं, वही हालात वो सारे दुनिया में पैदा करना चाहते हैं। अब वहाँ हालात ये अमेरिका के, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हालात बताऊँ आपको कि वहाँ पर तकरीबन या पूरे यूरोप का ये हाल है कि 40 से लेकर अलग अलग ममालिक में 70-75% तक बच्चे बग़ैर बाप के पैदा हो रहे हैं, शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। अब बताइए, आपकी औरतों की आज़ादी है या औरतों के ऊपर बर्डन है कि आपने उनके साथ में ताल्लुक़ रखा, लेकिन चूँकि आपकी शादी नहीं बाकायदा हुई हुई थी, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बेचारी अकेली प्रेग्नेंट होती हैं या तो अपने बच्चों का अबॉर्शन करा देती हैं, और अगर वो किसी मजबूरी के तहत अबॉर्शन नहीं हो पाता तो उसे वो अकेली पालती हैं। वो बच्चे बेचारे सारी उम्र अपने माँ बाप के मोहब्बत से और उसके प्रोटेक्शन से वो रहते हैं। औरतें ही उनके लिए कमा रही हैं, वही बेचारी सर्विस करके कमाती हैं, सारा बर्डन उनके ऊपर डाल दिया गया है। तो हमें ये सारी हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने हैं कि और कितनी बुरी तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज इसके तौर पर बढ़ी हैं। कितने करोड़ों अफराद हर साल इस जो जिनसी तस्वुर और जो फैमिली सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन है उसकी वजह से 10 करोड़ अमवात होती हैं हर साल, जिसमें कम से कम 6-7 करोड़ तो बच्चों का अबॉर्शन कर दिया जाता है, इसलिए कि वो नाजायज़ ताल्लुक़ात के तौर पर पैदा होते हैं। उसके अलावा बड़ी तादाद में पिछले 30 साल के अंदर एड्स की वजह से कम 5.25 करोड़ लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और हर साल लोग मरते चले जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में और बीमारियां हैं, जिसमें एक सर्वाइकल कैंसर होता है जो औरतों में होता है, मर्दों में बीमारी HPV पैदा होती है, उसकी वजह से औरतों में होता है, जिसकी वजह से हर साल 3.5 लाख के करीब औरतें मर जाती हैं, बच्चे बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो वो सारे के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन चूँकि उनको तो मार्केटिंग करनी है, उनके नज़दीक सेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, फैशन बहुत बड़ी
मार्केट है, गारमेंट्स बहुत बड़ी मार्केट है, और वही जानते हैं कि ये मार्केट के लिए औरत और मर्द के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी है, और उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए फैमिली सिस्टम को तोड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक तरीके से यकसा सिविल कोड की वकालत इसलिए करते हैं ताकि वो जो फैमिली सिस्टम है वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाए और सारी की सारी उसके अंदर रुकावटें पैदा होने चले जाएँ, लोग मजबूर होकर शादी से दूर भागने लगें। तीसरा एक ग्रुप लेफ्टिस्ट का भी है, जो हालांकि इकोनॉमिक थ्योरी उनकी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इस मामले में उनकी सोच भी वही लिबरल मिलती जुलती सोच है। वो भी बहुत ज़्यादा फैमिली सिस्टम के कायल नहीं है, जो पूरे ये जो तसव्वुरात है प्योरिटी का और औरतों की एक ख़ानदानी सिस्टम का और उसमें वो भी उसके कायल हैं। तो ये पूरा का पूरा वहाँ तो एक पूरा सिस्टम सेक्स का, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है और अबॉर्शन एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उनके नज़दीक तो यानी प्रॉब्लम भी मार्केट और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मार्केट। पहले ड्रग्स बेचिए, फिर ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम कीजिए, दोनों से कमाई हो रही है। अल्कोहल बेचिए, फिर अल्कोहल के ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल कायम कीजिए, दोनों से कमाई है। क्राइम्स भी कमाई है, और फिर लिटिगेशन जो है वकील खूब कमाते हैं, सब पुलिस वाले खूब कमाते हैं। तो वहाँ तो उनको तो यह है कि अगर क्राइम्स नहीं होंगे तो लिटिगेशन इंडस्ट्री कैसे चलेगी, अगर ड्रग्स नहीं होंगे तो क्लिनिक्स कैसे चलेंगे, मेडिकल वर्ल्ड। हालांकि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेडिकल वर्ल्ड को तो बीमार लोग चाहिए। अगर लोग बीमार होना बंद कर देंगे तो फिर मेडिकल वर्ल्ड की तो कमाई बंद हो जाएगी। तो इसलिए किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मसाइल कम हो, सबकी दिलचस्पी है कि मसाइल हों और उसका कुछ ऐसा हल पेश किया जाए कि जो मार्केट ओरिएंटेड हो। तो ये इंडिया के कॉन्टेस्ट में, ये तो वेस्ट का कॉन्टेस्ट में है, वेस्ट में इस तरह की सिचुएशन है। हाँ। इंडिया के कॉन्टेस्ट में क्या एम्पिरिकल जो है आप स्टडी पेश कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा मुल्क है, यहाँ पर जो है एक तो आवाम जो है सिस्टम से हमेशा बेगाना रहे, क्योंकि सिस्टम उनको कुछ देता नहीं। सिस्टम से जैसा आप वेस्ट में जाएंगे, सिस्टम से उनकी यगानगत होती है, वो सिस्टम से वाबस्ता होते हैं। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चंद लोग जो है बहुत चालाक, जो शातिर किस्म के होते हैं, वही हुकूमत भी करते हैं, उसी किस्म के लोग जो होते ये करते हैं। तो आम हिस्सा जो है एकदम बेगाना है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, चंद लोग होता है। तो जैसा मैंने कहा कि पहली बात तो वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में भी खूब जोर शोर से जारी है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को भी अब जायज़ कर दिया है, होमोसेक्सुअलिटी को पहले जायज़ कर दिया था, अब सेम सेक्स मैरिजेस को भी ऊपर पटिशन है, उसका भी फैसला ऐसा ही लगता है जैसे हालात हैं कि वो एक ही तरफ जाएगा। तो ये सारे हालात हिंदुस्तान में भी पूरा पैदा किया जा रहा है। उसके अलावा भी बाकायदा जो मैंने पहले कहा कि जैसे वो कुछ फोर्सेस हैं वहाँ पर एक पॉलिटिकल उनके मोटिव्स हैं, और बड़ी एक तरफ तो वो एकसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ एकसानियत कहीं दिखाई नहीं देती। आप यानी एक आर्टिकल 379 है कि जो ये कहता है कि हर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में एक नए नए कानून अलग अलग बना सकती है। अलग अलग कानून बनाने के बाद विद इन द कंट्री, अभी जो मोदी जी ने कहा कि एक फैमिली के अलग अलग लोगों को कानून अलग अलग, अरे भाई एक फैमिली आपकी इंडिया, एक फैमिली आप खुद जगह जगह कहते थकते नहीं हैं कि अरे हम एक खानदान एक फैमिली हैं हम लोग, और वहाँ पर आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग कानून। अभी आर्टिकल 370 अब आपने हटाया है, वो चूँकि आर्टिकल 369 के तौर पर 371 में और 370 में बहुत सारे और, जिसमें मिज़ोरम, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके लिए आंध्र प्रदेश सारे बहुत कानून मौजूद हैं। यानी 371 ABCDE FGHI ये सारे अलग अलग स्टेट्स के लिए कानून हैं। वहाँ पर तो आप यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि शराबबंदी भी एक स्टेट में कुछ है, एक स्टेट में है ही नहीं, बहुत कितनों में। यहाँ तक कि गौकुशी पर पाबंदी भी जो आप लगाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसके ऊपर लॉज हैं। और ऐसे कितने ही स्टेट्स हैं कि जिनमें हिंदू मेजोरिटी है लेकिन लॉ नहीं है। कर्नाटक के अंदर भी हम देखते हैं कि जब बीजेपी आती है वो वक्ती तौर पर पाबंदी लगाती है, बाकी लोग हटा देते हैं। जो कर्नाटक में हिंदुओं की बड़ी कसीर तादाद है कि जो बीफ खाती है, जो वो करती है। तो वो यानी हर चीज़ आपने अभी पिछले दिनों वो लाए आप जो लॉ था सिटीजनशिप वाला, वो लाए, उसमें भी आपने अलग अलग यूनिफॉर्मिटी की बात तो नहीं की। आपने कहा कि अगर कोई आने वाला क्रिश्चियन होगा, आने वाला हिंदू होगा, आने वाला सिख होगा तो उसको तो सिटीजनशिप दी जाएगी, मुसलमान होगा तो
तो कहाँ आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं? अरे आप ही जो कानून बना रहे हैं उसमें भी आप यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्मिटी और इक्वलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि आप बिल्कुल मुझ जैसे हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता। इक्वलिटी का मतलब यह है कि आपको भी चंद इख्तियारात हैं, हमको भी चंद इख्तियारात हैं, अपने इख्तियारात के तहत। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह है, यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट कहीं लग नहीं सकता। ना तो वो अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग मज़हब पे लग सकता है, ना विद इन मज़हब कोई बात कहने लगे कि मर्द और औरत यूनिफॉर्म है। मर्द औरत इस्लाम में यूनिफॉर्म नहीं, इक्वल हैं। यूनिफॉर्मिटी और इक्वलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चूँकि औरत के और मर्द के जो बायोलॉजिकल ड्यूटीज़ हैं जो वो यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों की अलग अलग हैं भाई। और औरत जो है 9 महीने तक बच्चा पेट में रखती है, फिर बच्चे को पैदा करती है, फिर दूध पिलाती है। मर्द तो नहीं कर सकता ये। तो उसी एतबार से इस्लाम ने उनके राइट्स मुकर्रर किए हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी बायोलॉजिकल ज़्यादा है, इसलिए उसको आज़ाद रखने के लिए मर्द के ऊपर ही पाबंदी लगाई कि उनकी जिम्मेदारी पालने की, फाइनेंशियल जिम्मेदारी और फिजिकल जिम्मेदारी तुम्हारी है। हालांकि हक़ औरतों को भी दिया कमाने का, औरतें बिल्कुल आज़ाद है इस इस्लाम में कमाने के लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर मर्द की है कि चूँकि औरत इतना लंबा एक पीरियड उसके ऊपर गुजर रहा है, जो पूरा उसको बायोलॉजिकल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब अगर आप उसे पता लगा उसी हालत में, जो मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि बच्चा हुआ है और उसके 1-2 महीने के बाद वो बेचारी जॉब में जा रही है, बच्चा अकेला घर में आकाएँ, इधर उधर की जो छोटी नौकरानियाँ हैं उनके ज़िम्मे पल रहा है, माँ से दूर है बच्चा। तो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो वो हिंदुस्तान के अंदर वही मसला है कि यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम में जो ताल्लुक़ जिस बुनियाद पर होना चाहिए उस बुनियाद पर तो पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती। उनके बीच ताल्लुक़ तोड़ने के लिए ये एक नया शोशा यूनिफॉर्मिटी का छोड़ा जाता है, जिससे ताल्लुक़ पैदा नहीं होगा, ताल्लुक़ टूटेगा और दूरियाँ बढ़ेंगी और सोसाइटी में फसादात बढ़ेंगे, एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ेंगी। तो ऐसा कानून लाकर आप यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि जिससे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं बल्कि और दूरियां बढ़ जाए लोगों के अंदर, तो डिस्फॉर्म हो जाए, तो उसको कोई फ़ायदा हासिल होने वाला है, मेरी समझ से बाहर है। तो अब ये देखिए, जो हुमन होता है, हुक्मरां जमातें जो होती है जी, कुछ मुस्लिम तंजीमें, कागजी तंजीमें, उनको खड़ा कर दिया जाता है, जो है ना मौक़िफ़ किस्म के लोग होते हैं। कोई एक सोफ़ी कौंसिल है, एक मोहतरमा है, वो गुजरात में बैठी हुई है, किसी गैर मुस्लिम से 2-3 लोगों से शादी भी की है, उन्होंने भी एक तंजीम बना के रखी हुई है औरतों के हकूक़ नाम, मुस्लिम औरतों के हकूक़। वो फिर एक सोफ़ी कौंसिल है, कुछ इस तरह की तंजीमें बना के रखी हुई है, अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम माशरा जो है, इस्लाम जो है, हम कहते हैं कि रहमत है दूसरों के लिए, मगर हम अपने जो बिरादराना वतन के सामने उसको रहमत की शक्ल में पेश नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी, देखिए ये बहुत बड़ी कमजोरी है। किया जाए, ये बहुत, जो मौलवी हज़रात हैं, इनके ज़हन में होता ही नहीं कभी कि ये इस्लाम जो है तमाम इंसानियत के लिए आया हुआ है। जी, मेरा तो चूँकि पूरा मौजू ये रहता है, मैंने तो बाकायदा एक अप्लाइड इस्लामिक्स के नाम से एक पूरा नया तस्वुर भी पेश किया है। उसका मकसद यही है कि देखिए, एक गलत फहमी लोगों में ये है कि इस्लाम जैसे मुसलमानों के लिए, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए। दूसरी गलत फहमी लोगों के अंदर ये है कि लोग समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं है, इस्लाम के आखिरी नबी हैं। उससे पहले 1 लाख से ज़्यादा दूत और नबी और मैसेंजर सब पूरी दुनिया में आए हैं, जो हर मुल्क के अंदर अपनी अपनी ज़बान बोलते थे। अरबी ज़बान नहीं थी उनकी ज़्यादातर की, उनकी ज़बान अलग अलग ज़बान थी। अलग अलग ज़बान में उन्होंने खुदा का नाम था, कहीं ईश्वर है, कहीं यहोवा है, कहीं जेहोवा है, कहीं और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम थे। तो लेकिन सबका वो ये था, सब ईश्वर की तरफ से आए हुए थे। एक ईश्वर जो पूरी दुनिया को जिसने पैदा किया और जिसको कंट्रोल करता है, वो परमेश्वर एक ही है। उसने सबको भेजा, लेकिन चूँकि बीच बीच में डिस्टोर्शंस होते चले जाते थे, लोग अपने रास्ते से हट जाते थे, इसलिए फिर नया पैगम्बर भेजा था और उन आखिर में मोहम्मद साहब को भेजा गया। और हमें तो ये कहा गया है, कुरान बार बार कह रहा है कि आप सबको सच्चा मानिए। तो कुरान में तो ये तसव्वुर है। तो वो तसव्वुर के साथ में सब मज़ाहिब को तो अक्सरी हमें ये तसव्वुर सबके सामने पेश करना चाहिए था, और हमें ये भी बताना चाहिए कि पूरा जो इस्लाम तसव्वुर पेश करता है वो किस तरह हेल्थ प्रोटेक्टिव है, पीस प्रोटेक्टिव है। उससे समाज के अंदर बीमारियों की बेनतहा कमी आएगी। इस्लाम का 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2 डायमेंशनल है। यानी उसमें पहला जोर दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स पर,
جس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے. دوسرا طرف تھوڑا سا ذکر فنڈامنٹل ڈیوٹیز کا ہوتا ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی دیکھیں گے آپ تو فنڈامنٹل رائٹس پر بڑا لمبا چیپٹر ہے, فنڈامنٹل ڈیوٹیز پر مختصر ہے. ایک تیسرا کانسیپٹ فنڈامنٹل پروہیبیشنز, وہ کہیں دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا, نہ انڈیا میں ہے. لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے, جس میں فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق, فنڈامنٹل ڈیوٹیز یعنی بنیادی کرتویہ فرائض, اور فنڈامنٹل پروہیبیشنز یعنی جو چیزیں آپ کو حرام ہیں, جو پروہیبٹڈ ہیں. اور اس کے پیچھے, اس پورے کانسیپٹ کے پیچھے ایک پوری ہیلتھ اور پیس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ دنیا میں پیس قائم ہو. اسلام کا مقصد دنیا میں ٹوٹل امن و سلامتی, اور اس امن و سلامتی کے 3 جز ہیں, ایک انڈیویجول, ایک فیملی, ایک سوسائٹی, کہ تینوں لیول کے اوپر انڈیویجول بھی پیسفل ہو. انڈیویجول کے پیسفل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ صحیح رہے, اس کو مینٹلی سوشلی بھی وہ پیسفل ہو, اور اس فیملی کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے سارے ممبرس میں اچھے روابط ہوں, اچھے تعلقات ہوں, میاں بیوی میں, بیوی بچوں میں, اور بچوں میں آپس میں, بچوں کے والدین میں, ایون یہاں تک کہ دادا دادی اور آس پاس کے لوگوں ان میں ایک اچھا تعلق پیدا ہو, تو وہ فیملی پیس ہے. اور ایسی بیماریاں, ایسے مسائل نہ پیدا ہو جو فیملی سسٹم کو ڈسٹرب کریں. اور تیسری چیز سوشل پیس, کہ سوشل کرائم لیس سوسائٹی ہو, سوسائٹی میں ڈس آرڈر نہ ہو, کرائم ہو. تو سارے اسلام کے سارے اصول, جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا, ان سب چیزوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں ڈیتھس ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اور ابھی بھی آج کل میں نے بتایا جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا, ان کی وجہ سے ہر سال پوری دنیا میں کم سے کم 11 کروڑ موتیں ہوتی ہیں. 11 کروڑ کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے. شراب کی وجہ سے 40-50 لاکھ لوگ کم سے کم بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں. اس کے علاوہ شراب کی وجہ سے ایکسیڈنٹ, شراب کی وجہ سے مرڈر, شراب کی وجہ سے ریپس دن رات ہوتے ہیں. تو وہ کتنا, اور شراب کی ام الخبائث اسی لیے کہا گیا ہے. پھر آپ جو سیکسول سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ سیکس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, کہ میں نے بتایا جیسے پہلے بھی کہا کہ ایڈس کی وجہ سے بڑی تعداد میں, پھر HPV, HIV اور سروائیکل کینسر, ان کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. پھر ابورشن, بتائیے ایک بچے کو 4-4, 5-5 مہینے کے بچوں کو نکال کے باہر مار ڈالا جاتا ہے. کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دنیا میں بولنے والی نہیں ہے اس قتل عام کے, چونکہ مارکیٹ فورسز کھڑی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ سارا کا سارا سسٹم اسلام میں پورا ہیلتھ اینڈ پیس پروٹیکٹیو ہے. ہمیں یہ باتیں دنیا کے سامنے لانا, میں تو علماء دین سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ شراب حرام ہے, آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ شراب حرام کیوں ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا ہے صرف کہ جنسی تعلق صرف فیملی سسٹم کے تحت ہی الاؤڈ ہے, آپ کو یہ بتانا ہے کیوں ہے. آپ اگر ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کو وجہ بتانی ہے کہ سب سے خطرناک اگر کوئی سیکسول ریلیشن شپ ہے تو وہ ہومو سیکسولیٹی ہے. اس سے زیادہ خطرناک ہیلتھ کے اعتبار سے کوئی دوسری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سب سامنے آئیں گی, اس کو آپ جو اگریسیولی پرسیو کریں گے. اور یہ ایسے فیکٹس ہیں جس کو کوئی دنیا میں ڈینائی نہیں کر سکتا, جس کو کوئی سارے آنکڑے UN کے, یونائٹڈ نیشنز کے, WHO کے, USAID کے سب موجود ہیں. تو اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ایسی چیزیں جو لوگوں کے سامنے لانی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں کہ بھائی آپ سب ہمارے بھائی ہیں, ہم الگ الگ نہیں ہیں. ہم سب کو, سارے مذاہب کو, جو ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایک all religions should combine on the ground of common religious morality rather than fighting each other on the ground of religious identity. ہم کو ایک دوسرے کی پہچان کے بنیاد پر لڑنا نہیں ہے کہ الگ الگ پہچان ہے, صاحب ہم ہندو ہیں, ہم عیسائی ہیں, ہم بودھ ہیں, ہم سکھ ہیں. اس پر لڑنا نہیں ہے, بلکہ اس بنیاد پر کہ سارے مذہب کا, تقریباً سارے مذہب فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سارے مذہب گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. سب مذہب یہ سکھاتے ہیں کہ عورتیں اس کے ساتھ رہیں, ایک ان کو دنیا کے اندر اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, ایکسپلائٹ نہ کیا جائے ان کو دنیا کے اندر. تو یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں. کوئی مذہب, کوئی عورت, کوئی مذہب شراب پینے کو آگے بڑھنے کی بات نہیں کرتا, کوئی جوا کھیلنے کی بات نہیں کرتا. تو ان چیزوں پر ایک ہونے کے بجائے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور یہ پولیٹیشنز ہمارا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو یہ آخری میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ اس کو اچھال کر جو ہے, اس کے انسٹنسز بہت کم ہوتے تھے, اسے کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہے اس کے حوالے سے اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لاسٹ ٹائم بھی. تو وہ ایک موقع تھا آپ کو اسلام کی صحیح بات ہے. میں نے اس زمانے میں UCC جو ہے, جو شوشہ چھوڑا ہے نا, وہ بھی اسلام کو اٹیک کرتے ہی کیا جا رہا ہے. اب تک مسلم پرسنل کے معاملے سے کہا جا رہا, جو کچھ بھی جو درباری میڈیا میں جو ڈیبیٹس ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے لے کر آ کے ہے نا. نشانہ ان کا سب صاف ہے بالکل کہ بھائی ہم کو پولرائز کرنا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اسلام کی صحیح بات پہنچانے کا موقع دیا ہے,
इस पर इसको किस तरह से वो करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, जो बिल्कुल ज़रूरी है, चूँकि देखिए जो हाँ देखिए जो चीज़ें हैं वो उठाएं, हमको मालूम है कि वो क्या क्या मसले उठाएंगे, हमको मालूम है कि वो डिवोर्स की बात फिर करेंगे, हमको मालूम है कि वो पोलीगमी की बात करेंगे, और तो हमें हाँ कर ही रहे हैं, तो उसका जवाब मेरे पास तो खूब ज़ोर शोर से, मेरा किसी से मुकाबला करा दीजिए, लाखों लोगों के सामने मैं अपनी ये पेश कर सकता हूँ इस्लाम का जो फैमिली सिस्टम है वो किस लिए परफेक्ट, उससे बेटर सिस्टम नहीं हो सकता। तो मैं सब दलाल पेश, उनको सीखना चाहिए और उन दलाइल को दुनिया के सामने लाना चाहिए कि क्यों इस्लाम के अंदर पोलीगमी, लिमिटेड पोलीगमी क्यों अलाउड है। आप तो प्रोमिस्क्यूटी अलाउ कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर रहा है। पोलीगमी प्रोमिस्क्यूटी में फ़र्क ये है कि पोलीगमी का मतलब ये है कि एक वक्त में एक मर्द ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी नौबत कहीं शायद हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसे हों कि जिनके 4 बीवियाँ होंगे, मैंने तो देखा नहीं आज तक, तो वो तो बमुश्किल तमाम ऐसी नौबत आती है। और चूँकि सोसाइटी में पॉपुलेशन का जो एतबार है, अगर आदमी मिसाल के तौर पर ये चाहे, सारे मर्दियों चाहने लगे कि हमें 4 शादियाँ करनी है, तो 4 गुना औरतें चाहिए। अरे है ही नहीं, मामूली रेशों में फ़र्क है, तो बहुत चंद ही लोग ऐसा कर सकते हैं चाह कर भी। उसके अलावा प्रोमिस्क्यूटी एक ऐसा तस्वुर है कि जिसमें मालूम हुआ कि पाबंदी नहीं है, एक मर्द के 10 औरतों के साथ ताल्लुक़ है, उन 10 औरतों के और एक हर औरत के कई मर्दों से ताल्लुक़ात हैं, फिर उनके कई औरतों से, यानी वो पोलीगमी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3% लोग कर सकते हैं मैक्सिमम। प्रोमिस्क्यूटी जिसमें सब शिकार हैं, अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं बाकायदा 94% से ज़्यादा मर्द और औरतें प्रोमिस्क्यूस, यानी एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों से ताल्लुक़ात रखती है, जिनसी बहरा रवी का शिकार है। तो इस्लाम का तो ये प्रोटेक्शन है कि इस्लाम में जो ये प्रोमिस्क्यूटी से ये तमाम सेक्स डिसीज़ पैदा होती हैं, हलाकतें पैदा होती हैं, प्रॉब्लम पोलीगमी इसमें नहीं बढ़ती, चूँकि इसलिए कि वो ताल्लुक़ एक ही मर्द से 2-3 औरतों का जिनका भी है, उन औरतों का किसी और मर्द से नहीं है, वो सिर्फ वो जरासीम जो उसके होते हैं वो इधर उधर फैल नहीं सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स इस्लाम के फेवर में, सारे मेडिकल फैक्ट भरे पड़े हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है। कोई भी डिवोर्स के मामले में मैं कहूँ कि ये गलती थी हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की कि उन्होंने जो इस्लाम का सही तरीका था डिवोर्स का, वो लोगों को बताया ही नहीं। ये बात मैं सन 85 से कहता आया हूँ, लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस्लाम का सही तरीका ये है कि एक बार तलाक दी जाएगी, 2 लोगों की गवाहों की मौजूदगी में दी जाएगी, और उसके बाद में 3 महीने की इद्दत होगी। इस बीच में कभी भी वापसी हो सकती है। 3 महीने के बाद में वो दोबारा फैसला होगा कि भाई तलाक देनी है कि नहीं देनी है। अगर इस बीच में प्रेग्नेंट हो गई तो वो पूरी प्रेगनेंसी के सारे मराहिल मुकम्मल होने तक इद्दत जारी रहेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ में अगर मुसलमानों को पता होता, और वो 3 तलाक वाला जो इशू एक्चुअली में इस्लाम में ओरिजिनली है ही नहीं, कुरान में है ही नहीं वो तरीका, अगर उसको लोग ना फॉलो करते तो प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली थी। लेकिन चूँकि सही तरीके का लोगों को इल्म ही नहीं था, तो वो उसमें गलती हमारी भी थी। गवर्नमेंट की गलती ये है कि उन्हें बजाय कानून अगर बनाते वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कानून हो कि जिसमें अगर औरत मर्द ने गलती की है तो वो दोबारा सही तरीके से तलाक दे, ना कि ये कि उसको आप जेल के अंदर 3 साल के लिए डालना है। तो बस मकसद तो उनका सताना मकसद था, चूँकि मकसद है। हाँ बस वो उसी में। हाँ, तो हमें डिवोर्स का तरीका, और डिवोर्स में मैंने तो अपने उसमें लिखा है कि इद्दत कितना अहम, साइंटिफिकली और मेडिकली भी कितना इद्दत इम्पोर्टेंट है, कि इद्दत की वजह से भी कितनी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, जो 3 महीने का मुद्दत रखी गई है इस्लाम में, तो सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ जितनी भी हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस, जितनी भी बहुत काफ़ी तादाद में बीमारियां हैं, उन सब का इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस वक्त जरासीम बदन में दाखिल हुआ और जिस वक्त बीमारी का आगाज़ हुआ, उसके बीच में जो वक्फा है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो यानी जाहिर होना शुरू हो गई बीमारी, उन सब का इंक्यूबेशन पीरियड 90 डेज से कम है। और जो एड्स का विंडो पीरियड है, यानी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, वो भी 90 डेज से कम है। तो ये जो इस्लाम में कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिसमें एक औरत के ताल्लुक़ 2 मर्दों से हो और उसके बीच में कम से कम 90 दिन का वक्फा ना हो। तो इस वजह से सारी बीमारियों को फैलने के इम्कान तकरीबन नफ़ी हो जाते हैं अगर इस्लामी माशरा हो। और उसके सबूत हैं, एड्स की वजह से 5 करोड़ के करीब लोग मर चुके हैं। सबसे कम अगर कहीं एड्स रही है तो मुस्लिम ममालिक के अंदर, सऊदी अरब और आपका कुवैत
اور UAE، قطر، یہ وہ ممالک ہیں جن میں سب سے کم ایڈس دنیا کے اندر دیکھی گئی ہے، اور سب سے زیادہ یورپین کنٹریز کے اندر، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ رہی ہے، افریقن کنٹریز میں رہی ہے کہ جہاں پر اس چیز کی پابندی نہیں ہے۔ کیچ لائن کیا ہونا چاہیے مختصراً مسلمانوں کا UCC سے، کیونکہ جو ایک ہجانی کیفیت میں مبتلا کر کے رکھے ہوئے نہیں مسلمان مولوی جو ہے تو وہ ٹی وی اسٹوڈیوز میں پہنچ رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام جب اس کا ڈرافٹ آئے گا اس کی مخالفت میں اپنا پورا انٹلیکچوئل آرگومنٹ دیں، اگریسو آرگومنٹ دیں کہ اس کے مقابلے میں کیوں اسلامک پوزیشن یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جتنے بھی مسئلے ہیں، چاہے وہ انہیریٹنس کا ہو، چاہے ڈیورس کا ہو، چاہے پولیگیمی کا ہو، کیوں وہ پرفیکٹ سسٹم ہے ایک پرفیکٹ فیملی سسٹم کے لیے، اور وہ سسٹم ایسا ہے جو عورتوں کو اور بچوں کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ جو الزام یہ لگاتے ہیں کہ عورتیں اور بچے پروٹیکشن نہیں ہے، عورتوں کا خاص طور پر عورتوں کو پروٹیکشن ہی صرف اسلام دیتا ہے، سو کالڈ ماڈرنٹی یا سو کالڈ وہ، یہ تو عورتوں کو سوائے ایکسپلائٹ کرنے کے اور یوز کرنے کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ عورتیں آج اگر پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ برڈنڈ ہے تو آج کی ماڈرن عورت ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، جو پیشے کے لحاظ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور تقریباً 30 سال تک وہ پریکٹس کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ان کا جو میدان کار ہے وہ اسلامی علوم ہے، اپلائیڈ اسلامک نالج ہے۔ انہوں نے جو بتایا UCC کا جو شیوشا چھوڑا گیا ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے، اور اسلام جو ہے پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ زحمت نہیں ہے۔ اور اگر ہم بہت ہی عالمانہ انداز میں، بلیغ انداز میں اسلام کے بعد، کیونکہ یہ جو ہے جو شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز کی طرح ہے معاملہ، یعنی اسلام کی دعوت پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہے، اسے مسلمانوں کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرنا چاہیے، حجاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر غیر نتو خیروں کو جو ہے اس پر جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس طرح سے مسلمانوں کے اندر جو ہے رد عمل آ رہا ہے، نیجر کا رد عمل آ رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔